سندس فاؤنڈیشن انسانیت کی خدمت میں پیش ہے۔ آج ہمارے ساتھ دو بہن بھائی مریض موجود ہیں، ان کی والدہ بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ سندس فاؤنڈیشن میں آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ علاج معالجہ کی کیا سہولیات دیکھی ہیں اور اپنے بچوں کا انہوں نے کیا علاج پہلے کروایا تھا اور سندس فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی۔ جی بھائی جی۔ ہاں بھائی، میں یہی کہنا چاہتی ہوں بھائی کہ آپ بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں۔ آپ پہلے گجرانوالہ جاتے تھے، وہاں سے اب انہوں نے ہمیں سہولت دی ہے کہ حفصہ آباد چلے جائیں۔ ادھر آتے ہیں، بہت تعاون کرتے ہیں، فون وغیرہ کریں تو وہ بڑی چاہت سے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ آپ کے یہ جو بچے ہیں یہ کس بیماری میں مبتلا ہے؟ سکن کی تکلیف میں۔ سکن کی تکلیف؟ ہاں جی، سکن کی تکلیف ہے، تھیلاسیمیا نہیں ہے ان کو سکن کی تکلیف ہے۔ سکن کی وجہ سے نا ان کے ہاں جی وہ زخم وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ان کا خون ضائع ہو جاتا ہے۔ سال میں 1-2 دفعہ لگاتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو آپ سندس فاؤنڈیشن میں کتنی دیر بعد آتے ہیں؟ کبھی 6 ماہ گزر جاتے ہیں، کبھی 4 ماہ۔ ان کو تکلیف اور اوپر سے کوئی آ جائے، بخار وغیرہ ہو جائے، پھر کم ہو جاتا ہے بلڈ، اس لیے پھر جلدی آنا پڑتا ہے، لیکن سال میں 1-2 دفعہ ہی لگتا ہے۔ یہ جو خون ہے آپ کو سندس فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے یا آپ اپنا انتظام کرتے ہیں؟ نہیں، یہی کرتے ہیں۔ یعنی سندس فاؤنڈیشن آپ ہاں کو جی، خون فراہم کرتی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ ہاں جی، بالکل آپ مطمئن۔ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ اگر سندس فاؤنڈیشن کے کوئی ایسے علاج میں مرض میں مبتلا ہو تو اس کو کیا پیغام دیں گی؟ اس کو یہی کہوں گی کہ یہ بہت اچھے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کو دیں گے بلڈ، بالکل دیں گے۔ اس وقت سندس فاؤنڈیشن کے بلڈ کیمپ میں موجود ہوں، جہاں پہ کافی مریضوں کو جو ہے وہ خون لگا ہوا ہے اور ان کو متواتر، کسی کو ہفتے بعد، کسی کو 15 دن بعد، کسی کو 1 ماہ بعد، ان کو جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے سندس فاؤنڈیشن ان کو فراہم کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب سکھے کی سے موجود ہیں جن کے 3 بچے جو ہیں وہ اس موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو سندس فاؤنڈیشن میں آئے ہیں تو ان کو کیا سہولیات موجود ہیں اور وہ عوام کو کیا سندس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پیغام دیں گے۔ جناب کا آپ کا نام؟ میرا نام سرتل عزیب ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سکھے کی منڈی سے، سکھے کی منڈی ضلع سے۔ حفصہ آباد۔ تو آپ کے تینوں بچوں کو یہ؟ جی سر، میرے تینوں بچوں کو 2 بیٹی ہیں، 1 بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جی ہاں۔ کتنی عمر کے ہیں؟ ایک سر 5 سال کی ہے، ایک 2.5 سال کی ہے، 1 سال کا ہے۔ اچھا، جی تو آپ ادھر سندس فاؤنڈیشن میں آتے ہیں جی تو ان کو خون جو ہے متواتر ملتا ہے؟ ہاں جی، جب بھی رابطہ کریں ملتا ہے ان کو۔ اچھا، خون لگنے کے بعد ان کو آپ کیا فیل ان کا کرتے ہیں؟ خون لگنے سے پہلے ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، خون لگنے کے بعد ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے؟ ان کو نئی زندگی ملتی ہے صرف ان کی بدولت سے۔ باقی عزت مالک کی ذات دیتی ہے ٹھیک ہے، اور موت بھی مالک دیتی ہے۔ ان کی بدولت سے ہمیں یہ امید کی کرن جاگتی ہے، ان کی نہیں کہنا سندس فاؤنڈیشن سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھتے ہیں ہر روز۔ ٹھیک ہے، تو آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم عوام کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جو بھی اپنے احتیاط ہیں وہ سندس فاؤنڈیشن کو دیں۔ ان کی فلاح و بہبود کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زندگی بچ رہی ہے۔ ان کی دن رات محنت اور لگن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ یہ طلعت ظہیر صاحب میرے ساتھ جو کھڑے ہیں، ان کے 3 بچے ہیں جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں۔ آپ ان کے ریمارکس سن چکے ہیں کہ اللہ کے فضل سے وہ تسلی بخش، ان کو سہولیات اور علاج معالجہ کا انتظام ہے۔ لیکن میری آپ جو ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی ایک انسانیت اور آپ کا جذبہ ہے اور آپ ایک رحم دل انسان ہیں۔ میری اپیل ہے کہ حافظ آباد شہر اور خصوصی طور پہ اور بالعموم جو گرد و نواح کے علاقے ہیں، پورا ضلع سے میری اپیل ہے کہ اگر آپ بلڈ دیں گے، خون کا عطیہ کریں گے تو ان بچوں کے جو زندگی کے چراغ ہیں وہ روشن رہیں گے اور اللہ ان کو صحت بھی دے گا اور ان کی صحت بحال ہوگی، زندگی ہے جو اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ تو مہربانی کر کے آگے بڑھیں۔ مخیر حضرات مالی امداد دینا چاہیں بلکہ دینی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ تعاون کریں گے، کیونکہ مالی امداد یہ کہ یہاں تک کہ ان کو کئی دفعہ کسی بہت زیادہ جو کسی کو
मसला हो तो उनको हम किराया भी अपने पास से देते हैं। इनका खाना, इनका यहाँ पे आना और इनको जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या खून की इंतकाली से मुसलसल, उसमें किसी की तिली पे असर हो जाता है, किसी के फेफड़ों पे होता है, किसी के गुर्दे मुतासर हो जाते हैं। सो उस फर्दर जो बीमारी मुतासर करती है उससे बचाव के लिए हम इनको बड़ी हाई प्राइस जो या ड्रग्स देते हैं जो लाइफ सेविंग है और इस तरह का वो मुदाफ़त हो सकती है। फातिमा, तो आपको ये क्या लगा हुआ है? क्या ये आपको ये क्या लगा है? बैग अच्छा, तो आपको पता है कि ये क्यों लगता है? खून नहीं होता तब। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपकी उम्र कितनी है? 5 साल। 5 साल। स्कूल जाती हैं? क्यों? उनके स्कूल जाते हैं। ठीक हो गया। तो किस क्लास में है? प्रेप में। ट्रैप में। तो आपको पता है कि आपको ये ब्लड क्यों लगा है? हाँ, हम बताएं। तो आपको कितने दिन के बाद ब्लड लगता है? 6 साल से। 6 साल से लग रहा है। नहीं, कितने दिनों के बाद लगता है? बाद 15 दिन बाद? 15 दिन बाद। 15 दिन के बाद। 15 दिन बाद जब ब्लड लगता है तो आप क्या महसूस करती हैं? खुश होती हैं? ठीक होती हैं? चल। क्या नहीं आए नुको थैलासीमिया दा तिन्ना नहीं ब्लड लगता, 2 फौत हो गए ने, एक ठीक है। ते बड़ी मेहरबानी है जेड़ा ब्लड देंदे ने, दिया करदे ने। शुक्रिया ते जेड़े हैं ने सूफी ट्रेडिशन वाले इनांदी भी क्या बात है, बड़ी सेवा करदे ने। इत्थे आया खान बाण टुक्कर शुक्कर दवाई दरमल हर शै देंदे ने। ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? मुतमिन बड़े मुतमिन। ठीक। मेरा नाम हसनैन अली है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर सुंदर फाउंडेशन हाफजाबाद हूँ। ये हमारे पास क्रायोफ्यूज सेंट्रीफ्यूज है। ये पूरे हाफजाबाद में इस वक्त किसी के पास नहीं है। सेल सेपरेशन का ये काम करती है। रेड सेल, वाइट सेल और प्लेटलेट्स, इन तीनों के लिए लोगों को यहाँ से लाहौर से हाफजाबाद से बाहर लाहौर जाना पड़ता था, इस्लामाबाद जाना पड़ता था। ये सहूलत अब हाफजाबाद में भी मौजूद है। ये वो मशीन काम करती है और इसके बाद इसकी स्टोरेज आ जाती है। अब ये इस वक्त इसका टेम्परेचर, ये प्लाज्मा फ्रीज़र है। इसका टेम्परेचर -39 आपको शो हो रहा होगा। हमने इसका टेम्परेचर जो है वो -27 से नीचे नहीं जाने देना होता। इसके अंदर 1 साल तक प्लाज्मा जो है ना वो सेव रहता है। बैकअप में हमारे पास -86 टेम्परेचर की मशीन भी इसके बैकअप में पड़ी हुई है। अल्लाह ना करे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या बिजली का जो है ना वो झटका लग जाए या कोई इस तरह का मामला पेश आ जाए तो हम इसको फ़ौरन चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये ब्लड बैंक है। वाइट सेल इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, रेड सेल जो है वो इसके अंदर ब्लड बैंक के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इसका टेम्परेचर जो है वो 2 से 8 के दरमियान हमने मेंटेन रखना होता है। और ये भी जो है ना पूरे SOPs इसके ऊपर लगे होते हैं। हमारा स्टाफ सुबह आके इसके ऊपर जो है ना पूरे जो शिफ्टिंग वाइज होता है टेम्परेचर और टाइमिंग सब कुछ जो है ना वो लिख देता है। इवन हम लोग प्रोडक्ट्स भी लिख देते हैं इसके अंदर इस वक्त कितने हैं और कितने नहीं हैं। उसके बाद ये एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे अलाइजा स्क्रीनिंग है। ये पूरे हाफजाबाद में इस वक्त कोई नहीं कर रहा। ये समझ लें कि किट के ऊपर अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 25% आएगी। इसके अंदर 99.9% इसकी एक्यूरेसी है। हेपेटाइटिस B, C और HIV ये सब टेस्ट जो है ना इसके अंदर हो जाते हैं। एक वक्त में 99 सैंपल जो है ना इसके अंदर हम लगा सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है हमारा प्लेटलेट्स एजिटेटर इंक्यूबेटर। प्लेटलेट्स एजिटेटर इंक्यूबेटर वो चीज़ है इसके इंसान की बॉडी के अंदर 72 घंटे तक प्लेटलेट्स रह सकते हैं। इस मशीन का भी काम ये है कि इसके अंदर भी 72 घंटे तक रह सकते हैं। ये भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाफजाबाद में किसी के पास नहीं है। ये ब्लड कैंसर के बच्चों के लिए। अभी ये वाटर बाथ है, वो प्लाज्मा फ्रीज़र में से जब -37 -40 पे टेम्परेचर पे जब प्लाज्मा फ्रीज़ हो जाता है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर करने के लिए हम इस प्लाज्मा फ्रीज़र के अंदर रखते हैं ताकि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक आ जाए ताकि मरीज़ों को लगाया जा सके। ये भी सहूलत हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ये हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। ये भी हम रूटीन के टेस्ट जो है वो अगर बाहर से कोई करवाना चाहे या इधर से करवाना चाहे हम इन बच्चों के भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ये करते हैं। उसके बाद ये बड़ी अहम चीज़ है
बैग सीलर, ये भी एक नया ट्रेंड हम हाफिज़ाबाद में लेके आए हैं। ये इसका काम ये है कि हम कैंची के साथ बैग को कट नहीं करते, प्रॉपर रेस के साथ इसको सील करते हैं। ये भी समझ लें कि हाफिज़ाबाद में कोई भी इसके ऊपर जो है ना काम नहीं कर रहा, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा CBC एनालाइज़र है, ये समझ लें कि 30 सेकंड में ये रिज़ल्ट दे देगी आपको, और उसके बाद हमारा जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको अप्रूव करेगा और उसको देखेगा, बताएगा। ये समझ लें कि इसके अंदर 9 से 10 जो हैं वो वाइटल्स हैं, जो ये बताएगी कि ये इंसान की बॉडी के अंदर रेड सेल्स कितने हैं, वाइट सेल कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, ये सारा इसका काम है। और ये इसके बाद ये अगला प्रोसीजर जो है ना वो स्टार्ट होता है। बाकी ये हमारा क्रॉस मैच एरिया है, ये जो है ना हम प्रॉपर हाफिज़ाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फेजेस के साथ जो है ना क्रॉस मैच कर रहे हैं, ग्रुप टू ग्रुप नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रॉपर क्रॉस मैच करते हैं ताकि जितनी से ज़्यादा सहूलियात जो है ना हम इन बच्चों को जो है ना फराहम कर सकें। 2 क्लास। आपको कितनी देर में खून लगता है? 15 दिन अब अल्लाह ताला बीमारी ना लगाए, सारे तमाम बच्चे सेहतमंद हो जाए। साल 7 साल। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ? इन साल हो चला जी, ਕਿੰਨੇ महीने 2 बारी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੂਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਵਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਤਾਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੇ, बच्चे सारे हफ्ते 24 घंटे होंगे ने खून लवाने। मिस मामा, इससे तकरीबन 6 साल से ब्लड लग रहा है और ये 8 साल की हो गई है अभी। तो हमें ये सुंदर फाउंडेशन वाले जो हैं ये तकरीबन 6 साल से ब्लड दे रहे हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। और मेरी अपील है, ये जो ब्लड देते हैं और हम इनके लिए दुआ भी करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग जो हमें देते हैं ब्लड, और ये सुंदस फाउंडेशन वाले भी, कि ये जो सेहतमंद अफराद हैं ये खून का अतिया दें। खून की जो मुंतकली है या ट्रांसफ्यूजन जिसको कहते हैं, वो बच्चे के जिस्म में खून ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले सुंदस फाउंडेशन का एक बहुत एहतियात से काम करते हैं। और हम यकीन करते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से उस कोई हर किस्म के जरासीम या कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट उस खून का नहीं होता। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के आलात और ये गैजेट्स हैं इस लेबॉर्ट्री के लिए, जिसमें खून टेस्ट किया जाता है, जिनके ज़रिए खून, ये ब्लड बैंक है जिसमें कुछ अरसे तक हम ब्लड जो है जब भी कलेक्शन होती है तो इसमें महफूज होता है। इसी तरह ये एलाइज़ा टेस्ट होता है इसे, और ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में बहुत कम इस किस्म की सहूलियात हैं। और इस टेस्ट के बाद बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं होती अल्लाह के फ़ज़ल से कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या कोई उसका नेगेटिव उस पर असरात होंगे बच्चे पे। इसी तरह ये भी आप देख रहे हैं कि सुंदस फाउंडेशन ने बहुत आला इंतज़ाम किया है और हमें किसी के नहीं पास जाना पड़ता, बल्कि लोग हमें भी कहते हैं और हम उनसे भी तावन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है या किसी और मरहम पट्टी की, तो हम उसमें कोई तमीज़ नहीं उसमें बरतते, बल्कि फ़ौरन जो भी दरकार इलाज होता है उसका इंतज़ाम किया जाता है। और ये सारे जितने भी आपके सामने गैजेट्स हैं, ये अल्लाह के फ़ज़ल से ये सुंदस फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने हाफिज़ाबाद को और इन बच्चों के इलाज मुआवजा के लिए और इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किया है। आपसे फिर मैं अपील करूँगा कि ये तब हमारे इस्तेमाल में या इनका कोई हम कारआमद साबित होंगे जो आप हमें ब्लड अतिया करेंगे ख़ुसूसी तौर पे। वैसे तो ये 18 से 50 साल तक हम ब्लड उसका अगर कोई देना चाहे तो उसको इनकार नहीं करते, लेकिन ख़ुसूसी पैगाम मेरा नौजवानों के लिए है कि वो मेहरबानी फरमा कर अपने अब जज्बा पैदा करें और इन बच्चों की बका के लिए, इनकी सेहत के लिए, इनकी ज़िंदगी के चिराग रोशन रखने के लिए आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जज्बे और मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ अपने ब्लड का खून का अतिया करें ताकि हम अपना जो मिशन है उसको कामयाबी से निभा सकें।